شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رائٹس آف وومن ان اسلام۔ اسلام نے ویمن کو یعنی کہ عورتوں کو کیا حق دیے ہیں، کیا ہمارے حق ہیں، اور کیا جو ہے لوگوں نے ان حقوں کو دبا دیا ہے، اور کیا لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں، یا پہلے زمانے میں کیا غلط فہمیاں تھی، پہلے زمانے میں جو بھی غلط فہمیاں تھی ان کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے، اور جو بالکل صحیح طریقے سے، جو قرآن سے اور جو سنت طریقے سے ثابت ہے، جو حق ہے، انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم روشنی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پہلی سلائیڈ جو ہے شروع کرتی ہوں۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداری اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں نے ابھی پڑھی، تو اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے، یعنی کہ جو سچا ہے اور جو سچیاں ہیں، جو آدمی سچا ہے اور جو سچیاں کس کے لیے آئے یہاں پر، عورتوں کے لیے، بہنوں عورتوں کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بولتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گی کہ عورت کا بالکل کچھ مقام نہیں تھا، عورتوں کو یوز کیا جاتا تھا کرنسی کی طرح۔ کس طرح سے یوز کیا جاتا تھا کہ ایک اونٹ کے بدلے 100 عورتیں دے دی جاتی تھی۔ تو یہ جو رائٹس تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دلا کر گئے ہیں ہم کو، اور وہ اس ٹائم بھی اتنے ہی ماڈرن تھے جتنے کی آج ہیں، الحمدللہ۔ تو مرد اور عورت برابر ہیں، یعنی کہ جو نیکی کرے گا وہ اجر پائے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو عذاب ملے گا۔ یہ نہیں کہ اگر عورت نے غلطی کی تو اس کا عذاب جو ہے وہ بخش دیا جائے گا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کے کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا بے شک سری گمراہی میں ہے نا، سری گمراہی میں ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کے لیے آیتیں اتاری ہیں۔ تو جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں رکھا کہ عورت نیچے ہے یا آدمی نیچے ہے، الحمدللہ۔ تو اسلام جو ہے وہ کیسا مذہب ہے؟ اسلام پیس کا، سلم کا، اور سلم جو ہے کہ اسلام میں سلم بھی آتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا، اور سلام جو ہے وہ سلم سے بنا ہے، سلم SILM۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے ایک اللہ کے سامنے جھک جانا، ہے نا، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکتے ہیں نا، الحمدللہ۔ تو نام ہی جب سلامتی والا ہے اور سلامت رکھنے والا ہے، تو ایسا مذہب کیسے کسی ایک انسان کو سلامت نہیں رکھتا؟ کیسے کوئی انسان کسی کا حق دبا سکتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اس دنیا میں آئے، نہ کہ صرف مسلمان مردوں کے لیے اور نہ ہی صرف مسلمان عورتوں کے لیے، وہ آئے انسانیت کے لیے، انسانیت کو سکھانے کے لیے۔ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ صرف مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو سکھانے کے لیے آئے، انسانیت میں بچہ، بوڑھا، چھوٹا، بڑا، جوان، مرد، عورت سب آ گئے نا، الحمدللہ۔ آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جتنے حق دلوائے، ادھیکار دلوائے، اتنے کسی دھرم یا پھر کسی بھی سماج نے یا کسی معاشرے نے نہیں دیے،
वेस्टर्न कंट्रीज में 90s में 80s में ये सब चीजें दी गई हैं। इंशाल्लाह आगे चल के सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ कि कुछ अधिकार जो थे या फिर कुछ जो हक थे वो उनको छीनने पड़े। वोट वगैरह वो लोग करते थे, है ना, उस चीज के लिए, और कुछ उनको दे दिए गए। लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ये हक देकर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और जो कुछ भले काम करेगा, मर्द हो या औरत हो, मुसलमान, तो वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और नहीं तले भर नुकसान ना दिया जाएगा। यानी कि ज़र्रा बराबर भी उसको नुकसान नहीं मिलेगा। चाहे हम लोग छोड़ देते हैं ना, हम लोग जैसे किसी रिक्शा में जा रहे होते हैं और वो बोलता है कि 18 रुपया हुए, तो हम उसको 20 रुपए दे देते हैं। लेकिन वो 2 रुपए बराबर भी अगर किसी ने उसमें, चाहे मर्द हो चाहे औरत है, इक्वालिटी की यहाँ पर बात हो रही है। औरत और मर्द को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा बराबर रखा है, और औरतों के हक अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही है, देखा जाए तो आदमियों से। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ होने के बाद औरत को क्या होता है, दबा दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम इस पर क्या करेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे, ताकि हमें अपने हक पता रहे। जब हमें हक ही नहीं पता रहेंगे तो हम लड़ेंगे कैसे ना? हमें कैसे पता चलेगा कि हम हक पर हैं या हम सही बात कर रहे हैं? ये नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में कि अच्छे मर्द जन्नत में जाएँगे। है ना? बोला जो नेक आमाल करते हैं, और जो कुछ भले काम करेगा, मर्द हो या औरत हो, ठीक है? दोनों अल्लाह की नज़रों में दोनों बराबर हैं, और ज़र्रा बराबर भी उनका हक नहीं मारा जाएगा। ज़र्रा बराबर भी जो है उनका हक नहीं मारा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हालाँकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो राइट्स के नाम पर जो भी दिया जाता है, आपको पता है, इंसान को खूबसूरत बनाकर और उनको ना कर दिया गया है। आप जानिए बहनों, जो आजकल के राइट्स दिए जाते हैं, जो फ्रीडम के नाम पर और जो लिबर्टी के नाम पर दिया जाता है, उसमें बहनों की रूह से सौदा किया जाता है। आप खुद सोचिए कि मर्दों के किसी प्रोडक्ट को औरत बेचती है। मर्दों के किसी प्रोडक्ट को औरत बेचती है, और इस्लाम ने तो पहले ही आपको इतना ज़्यादा मकाम दे दिया है, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी के लिए कुछ काम करने की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली है। तो हमें कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखना होगा कि क्या हक दिए हैं। इस्लाम मर्द और औरतों को समान कहा गया है। इस्लाम में मर्द और औरतों को क्या कहा गया है? समान, यानी कि बराबर कहा गया है। अब हम लोग एक क्या गलती करते हैं ना, कि हम बराबर को, इक्वल को हम सिमिलर समझ लेते हैं, यानी कि बराबर कहा है, एक जैसा नहीं। आजकल के मुआशरे में जितनी भी हम लोग गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिमिलर होने की कोशिश करते हैं। सिमिलैरिटी के इसका मतलब क्या हुआ, एक जैसा। अल्लाह ने एक जैसा नहीं कहा है, अल्लाह ने कहा है आप दोनों बराबर हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप दोनों एक जैसे हैं। अब एक जैसे का मतलब क्या हो गया, जो कि आजकल होता है कि अगर मर्द जो है पैंट पहनते हैं तो हम भी पैंट पहनेंगे, अगर वो मूंछ रखते हैं तो हम भी मूंछ रखना चाहेंगे, है ना? तो ये हम क्या करते हैं, हम सिमिलर होने की कोशिश करते हैं, हम बराबर होने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर बराबरी जो थी वो उस जमाने में भी थी, 1400 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह एक-एक करके जो है हम सारे राइट्स जितने भी हैं, बहुत सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक दिए हैं औरत को, जिसमें से सिर्फ 6 के बारे में इंशाल्लाह बात करूँगी, और इंशाल्लाह उसी से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। वो जो 6 चीज़ें हैं, 6 राइट्स कौन-कौन से, इस्लामिक, ठीक है? स्पिरिचुअल राइट्स, यानी कि इस्लामिक कौन से हक हैं एक औरत को, इकोनॉमिकल राइट्स यानी कि जो उनका पैसा या फिर माली कौन से राइट्स हैं, सोशल राइट्स यानी कि मुआशरे वाले कौन से हक हैं, एजुकेशनल राइट्स का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई वाले की औरत पढ़ सकती है, नहीं पढ़ सकती है। कई लोग बोलते हैं कि औरत को सिर्फ इस्लामिक स्टडीज का ही राइट है, बाकी दुनियावी स्टडीज का नहीं है। उस चीज को इंशाल्लाह, उस वाले मिसकंसेप्शन को वो किया जाएगा। लीगल राइट्स यानी कि कानूनी हक क्या है औरत के, और पॉलिटिकल राइट्स यानी कि सियासी हक क्या है एक औरत के। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक राइट्स यानी कि स्पिरिचुअल राइट्स, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या-क्या राइट्स दिए हैं एक औरत को। ठीक है?
देखिए, बराबर कहा गया औरत को और मर्द को, है ना? एक जैसा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि बायोलॉजिकली भी हम लोग उनसे डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक जैसे नहीं बन सकते हैं, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, इसको गलत वे में ले इमोशनली इमोशंस औरत में ज़्यादा होते हैं, है ना? और डिफरेंट है विमेन और क्या विमेन और मेन दोनों ही डिफरेंट है। जिस तरह से हर एक इंसान यूनिक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी को अलग-अलग तरीके से बनाया है। इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब होता है जो जो चीज डिजर्व करता है उसको वो चीज देना। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल रहते ले लेते हैं कि रात में आपके घर में एक चोर आया, आप और आपकी बीवी जो है दोनों आप उससे मतलब क्या बोलते हैं कहेंगे मतलब आप और आपकी बीवी दोनों अगर वहां इक्वालिटी वाली बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? मतलब ये मर्दों के लिए बात हो रही है, तो क्या आपका जो खाविंद है वो आपको बोलेंगे कि आप जाइए और बोलिए कि देखो कौन है? क्योंकि इक्वालिटी है ना यहाँ पर, तो नहीं होगा ना ऐसा। क्योंकि आदमी को जिम्मेदार ठहराया गया है, वहीं हमको जो है उस तरीके की जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं। ठीक। इक्वालिटी का मीनिंग है डिजर्विंग, यानी कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसको जो चीज चाहिए वो देना। अब जैसे किसी स्कूल के बच्चे को यूनिफॉर्म देना स्कूल की, है ना? किसी जवान को नौकरी का मिलना या बीवी का मिलना, और किसी बूढ़े इंसान को नेक औलाद का, है ना? किसी ज़ईफ इंसान को नेक औलाद का मिलना, है ना? या फिर उसके सहारा देने वाली औलाद का मिलना। अब मान लीजिए इसमें सिमिलैरिटी अगर हम दिखाएँगे, यानी कि जो सिमिलर एक जैसी चीज़ करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जवान को भी स्कूल दें, आप बूढ़े इंसान को भी स्कूल दें, तो ये सिमिलैरिटी हो गई कि नहीं वो स्कूल जा रहा है तो मुझे भी स्कूल भेजो। पर क्या उससे फ़ायदा है? नहीं। इसी तरीके से आप बच्चे को भी नौकरी दें और आप बूढ़े इंसान को भी नौकरी दे दें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बूढ़े इंसान को ज़रूरत है औलाद की और किस चीज़ की? सहारे की। तो उसको वो चीज़ दिया जाए। जवान को ज़रूरत है नौकरी की और बीवी की, तो उसको वो चीज़ दी जाए, और बच्चे को ज़रूरत है स्कूल की और यूनिफ़ॉर्म की, तो उसको वो चीज़ दी जाए। इसको बोलते हैं इक्वालिटी, यानी कि बराबरी। सिमिलर चीज़ें नहीं, सिमिलर यानी कि स्कूल तीनों में स्कूल दे दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना किसी का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानने वाला है कि हमें किस चीज़ की कब और कैसे ज़रूरत है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह हम देखते हैं। अब इस्लामिक और स्पिरिचुअल राइट्स क्या हैं? इस्लामिक क्योंकि दोनों को ईमान लाने का हक है। यानी कि औरतों को भी ईमान लाने का हक है और आदमियों को भी ईमान लाने का हक है, ठीक है? यानी कि कलमा ए शहादत, तौहीद दोनों को ईमान लाने का हक है। इसमें ये नहीं कहा, क्योंकि ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जो यहूदी लोग थे एक टाइम पर क्या होता होता था, उन लोगों ने क्या किया था कि वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। कि जो औरत है वो नहीं पढ़ सकती है तौरात, और औरत जो है कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जो कि इस्लामिक हो। पहले तो वो लोग भी जो थे मुसलमान थे ना, वो कोई भी कैसा काम नहीं कर सकती है, रिलीजियस कोई काम नहीं कर सकती है। तो इस्लाम ने क्या किया, वहां पर बराबरी दी और कहा कि दोनों को ईमान लाने का हक है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, और कलमा शहादत और तौहीद पढ़ने का दोनों को हक है। अगर इस लायक है कि वो ज़कात निकाले, औरत अगर इस लायक है कि वो ज़कात निकाले, तो 2.5% मर्द को और औरत को दोनों देंगे, ज़कात का भी हक यहाँ पर दिया। फिर नमाज़ दोनों पढ़ेंगे। वो लोग अपनी मस्जिदें जो होती थी, जो यहूदी लोग थे, उनकी मस्जिदें जो होती थी, वहाँ भी नहीं जाने देते थे, औरत को नापाक मानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें कब दिलाई? 1400 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान के महीने के रोज़े दोनों रखेंगे, क्योंकि 5 चीज़ें हैं ना इस्लाम में, क्या है? नमाज़, कलमा, ज़कात, रोज़ा और हज। तो पाँचों चीज़ें रमज़ान के महीने के रोज़े दोनों रखेंगे, मर्द भी और औरत भी। और वो उसके खुद के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। ना मर्द औरत के लिए रखेगी, ना औरत मर्द के लिए रखेगा। अगर इतना पैसा है कि मक्का जाकर हज कर सके, तो मर्द और औरत दोनों करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ मर्दों को नहीं बुलाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ औरतों को नहीं बुलाया। तो ये होता है बराबरी देना। हमें सिमिलर नहीं होना है बहनों, है ना? सिमिलर और इक्वल।
दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ होती हैं और आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं, हम सिमिलर होने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूरे नहल की ये आयत है, पढ़ेंगे हम। सूरे नहल की आयत नंबर है 97, जिसमें बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अच्छा काम करे, मर्द हो या औरत और मुसलमान, तो ज़रूर हम उसे अच्छी ज़िंदगी जिलाएँगे। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि जितने काम इबादत के हैं, इसके अलावा वो दोनों के लिए एक जैसे होंगे। सारे काम अगर कोई इबादत वाला करेंगे, वो दोनों के लिए एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कहा कि एक को 100 नेकी, मर्द को और औरत को 75 नेकी। तो ये अल्लाह बराबरी कर रहा है बहनों। अल्लाह ने कभी ऊँच-नीच नहीं रखी। जो मुआशरा है, जो लोग हैं, जो भटके हुए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो ऐसा करते हैं और इंशाअल्लाह आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं न कहीं आप बहनों को चाहते थे कि आप औरत के हक़ समझें। क्योंकि आपको अगर लॉ पता होगा तो आप सही बात बोल सकती हैं। जब हमें सही चीज़ नहीं पता है कि सही चीज़ क्या है, तो हम सही और गलत का फ़र्क कैसे करेंगे? यानी कि कोई अज्र करेगा, एक काम इंसान कर रहा है, नेक काम, उसका अगर 100 नेकी मर्द के लिए तो 100 नेकी किसके लिए? औरत के लिए। सुभान अल्लाह! ये है मेरा अल्लाह, जो क्या करता है कि औरत और मर्द दोनों को बराबर रखता है। उसने ना औरत को हक़ारत समझा, ना ही मर्द को हक़ारत समझा। और क्या कहा? और ज़रूर उन्हें उनका नेक देंगे जो उनके सबसे बेहतर काम के लायक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहा कि उन्हें उनका नेक देंगे, ये नहीं कहा कि सिर्फ़ हम अ, औरतों को देंगे या मर्द को देंगे। तो ये है बराबरी, आप सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से बराबर किया है। जो जिस चीज़ का डिज़र्विंग है, उसको वो चीज़ दी है। ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब बोलते हैं, अब जैसे लोगों का कहना था पहले ज़माने में, उस टाइम की, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि औरतें जो होती हैं मनहूस होती हैं, बेवकूफ़ होती हैं और नापाक भी होती हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पाँचों राइट्स दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताएँ कि औरत नमाज़, ज़कात, रोज़ा, तौहीद, कलमा सब पढ़ सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और बोलते थे पहले ज़माने के लोग कि वो शैतान की पैराकार होती है, यानी कि शैतान की पैरवी वो करती है। और इस्लाम का ऐसा कोई यकीन नहीं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाँचों चीज़ें जो हैं औरत को कही और क्लियर कर दी कि नहीं, औरत कर सकती है। और औरत को, ये लोग पहले क्या मानते थे कि औरत को औलाद होना उसकी तकलीफ है, यानी कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब है उसको, क्योंकि उसने जन्नत से मर्द को निकाला था। माँ हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के लिए किसको ये वो मानते थे गुनहगार नहीं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का तो लिखा था ना दुनिया में आना, वो तो अल्लाह ने प्लान किया था। तो ये लोग क्या सोचते थे कि अगर माँ हव्वा ना होती और वो औरत थी, तो आदम अलैहिस्सलाम हमेशा जन्नत में रहते, है ना? इस्लाम क्या कहता है कि जन्नत में आदम और हव्वा दोनों से गलती हुई, दोनों ने तौबा की, दोनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ किया और दोनों को ज़मीन पर भेजा गया। ये नहीं कहा कि हव्वा ने आदम को जन्नत से निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों, वहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और ना ही मनहूस कहा, ना नापाक कहा, ना बेवकूफ़ कहा। इस्लाम ने औरत को क्या कहा? मोहसिनात कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जितने भी ये सब चीज़ें होती थी, क्या कहा? औरत को मोहसिनात का नाम दिया। मोहसिनात का नाम क्या होता है? नेकी की तरफ बुलाने वाली। जब लोग मानते थे, क्या मानते थे? औरत को नापाक, बेवकूफ़, मनहूस मानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मोहसिनात, यानी कि नेकी की तरफ बुलाने वाली। वो नापाक नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है और ना ही वो मनहूस है, वो तो वो है जो तुमको नेकी की तरफ बुलाती है। अब इस वर्ड का जो यूज़ है इंशाअल्लाह किसी बीवी के जो हक होते हैं उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी, और मोहसिनात का मतलब होता है आज़ाद ख़याल रखने वाली। सूरह निसा की एक आयत है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कहते हैं कि ए मोमिनो, मुसलमान आदमियों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुसलमान मर्दों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक अल मोहसिनात से शादी करो। दैट मीन्स आज़ाद ख़याल, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वुमन से। तो इस्लाम कैसे बोलेगा कि आप जॉब नहीं कर सकते? इंडिपेंडेंट, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जो ख़यालात किसी के ज़ोर दबाव दबाव में ना आती हो। अल्हम्दुलिल्लाह।
اور औलाद को पैदा करने वाला जो मिसकंसेप्शन था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैसे ही माँ के दर्जात बुलंद कर दिए। वो 3 गुना ज़्यादा जो है मर्द से जो माँ होती है वो ज़्यादा होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिसकंसेप्शन ख़त्म हो गया कि जो नापाक और बेवकूफ़ माना जाता था और ये सब कुछ किया जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, पाँचों चीज़ें कर सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पाँचों चीज़ें कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हव्वा को कहा जाता था, माँ हव्वा को, कि उन्होंने निकलवाया, तो अल्लाह ने कहा दोनों ने गलती की, दोनों को जन्नत से निकाला। दोनों ने माफ़ी माँगी और मैंने दोनों को माफ़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ भी मिसकंसेप्शन जो था लोगों का सही हो गया इस्लाम की तरफ से। अब क्या है इकोनॉमिकल राइट्स का मतलब क्या हो गया? जो कि माली राइट्स होते हैं ना। माली राइट्स में क्या है, इस्लाम में एक बालिग औरत, ये प्रॉपर्टी के लिए बेसिकली जो जायदाद होती है, एक बालिग औरत यानी कि जो एडल्ट फीमेल होती है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, रख सकती है, जो चाहे कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए आप, ये शायद नहीं पता था, मुझको भी नहीं पता था। जो चाहे वो कर सकती है, हाँ, वो उस अपनी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एक एडल्ट फीमेल, ठीक है? बगैर अपने बाप से पूछे, बगैर अपने पति से पूछे यानी कि शौहर से, और बगैर अपने बेटे से पूछे या बगैर अपने भाई से पूछे। पूछने का मतलब यहाँ मशवरा लेने से नहीं है, पूछने का मतलब ये है इजाज़त वाला। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपका पैसा है, तो आप कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। ठीक है? लेकिन इसके अंदर हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरा है तो मैं कुछ भी करूँ। यहाँ बगैर पूछने का मतलब है कि आप जो है इजाज़त नहीं ले, जैसे कुछ लोग बोल देंगे कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम मुझसे इजाज़त लोगी, नहीं। इजाज़त नहीं है, आप मशवरा कर सकते हैं बेशक। उसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे तो मशवरा कर सकती है। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये रूल है, जो ये हक है, ये 1400 साल पहले का है बहनों। ये मत सोचिए कि ये अभी बनाए गए, 1400 साल पहले का है, सुभान अल्लाह। मैंने बोला ना, जितने मॉडर्न उस टाइम थे इस्लाम के रूल, और उतने मॉडर्न ही आज के टाइम पर हैं। ये उस टाइम में दिए गए जिस ज़माने में औरत को इस्तेमाल की चीज़ समझा जाता था। ठीक है? औरत को बेचा जाता था, और मैंने बताया ना करेंसी के तौर पर यूज़ किया जाता था कि 1 ऊँट के बदले 100 औरतें। अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पर इस्लाम ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ये हक दिलाए। अगर पैसा उसका है तो वो बिना किसी की परमिशन के यूज़ कर सकती है। हाँ, इस्लाम ये ज़रूर कहता है कि सही जगह खर्च करे। वो जैसे चाहे यूज़ कर सकती है, लेकिन इस्लाम ये ज़रूर सलाह देता है कि सही जगह खर्च किया जाए। जैसे एक मर्द मालिक होता है, वैसे एक औरत भी मालिक होती है। इकोनॉमिकल राइट्स जो है ब्रिटिशियंस ने 1870 में दिया औरतों को, और इंडिया ने 19वीं सदी में दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे इस्लाम ने 1400 साल पहले दिया। अब जॉब की बात आ गई। जॉब जो है, इस्लाम कहता है कि कमाना मर्द की ज़िम्मेदारी है, औरत चाहे तो कमा सकती है। क्या है? इस्लाम कहता है कि कमाना मर्द की ज़िम्मेदारी है, औरत के लिए नेसेसिटी नहीं है कमाना। तो इन चीज़ों को समझिएगा, बोलते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है ना? वो चाहे तो कमा सकती है, लेकिन ज़िम्मेदारी मर्द की है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत पे कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं डाली है। तो वो चाहे तो कमाए, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी की बहन है, तो उसके भाई की ज़िम्मेदारी है उसको प्रोवाइड कराना। वो अगर किसी की बीवी है, तो उसके शौहर को उसको प्रोवाइड कराना है। वो अगर किसी की माँ है, तो उसके बेटे उसको प्रोवाइड कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी की बेटी है, तो उसके पापा यानी कि उसके वालिद जो हैं उसको प्रोवाइड कराएँगे। यानी कि कमाकर उसका हिस्सा देना किसकी ज़िम्मेदारी है? भाई की, शौहर की, बेटे की और बाप की। औरत की ज़िम्मेदारी कमाना नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे तो वो कमा सकती है, और उस कमाई पर किसी का हक नहीं है बहनों, उस कमाई पर किसी का हक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिज़नेस भी कर सकती है, बिज़नेस भी कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बिज़नेस वुमन थी, और वो पहली बिज़नेस वुमन थी। और ऐसा नहीं था, छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं था कि जैसे उनका सिर्फ़
क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री शॉप हो या फिर कोई बुटीक हो, ये सब कुछ नहीं था। इंटरनेशनल ट्रेडर्स थी वो, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि उनका सामान कहाँ से, मदीना से, मक्का से कहाँ जाता था? पैलेस्टीन जाता था, सीरिया जाता था, जॉर्डन जाता था, 3-4 कंट्रीज़ में जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उनकी हेल्प करते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि औरत बिज़नेस कर सकती है और उसका हस्बैंड भी उसके अंदर क्या कर सकता है? काम में हाथ बटा सकता है। आप हाथ बटा सकते थे। ये अलग बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों से खुश होकर क्या कर सकते हैं? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है इस चीज़ के लिए, अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। औरत के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपको प्रोविज़न अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके भाई, आपके आपके बेटे, आपके बाप और आपके शौहर के रूप में प्रोवाइड कराया है। तो अपनी खुसूसन चीज़ों के लिए नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं। और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, वो अलग चीज़ है कि उन्होंने खुश होकर अल्लाह की राह में जो है सब कुछ दे दिया और बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनको लोगों में जो है खर्च कर दीजिए इस चीज़ के लिए। वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने दिया, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरा क्या है इसके अंदर? मेहर। ये इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है जो इस्लाम देता है। अगर औरत कमाती है तो उसकी कमाई का किसी पर हक नहीं है। शौहर कहे, मतलब अगर शौहर कहे तो दे दो, उसकी मतलब उसकी मर्ज़ी है वो दे या ना दे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शौहर जो है बिल्कुल से, और हम लोग कहें कि मेरी कमाई है मैं तो नहीं दूँगी। तो वहाँ पर इंसान जो है वो, इस्लाम उनसियत भी सिखाता है, क्योंकि वो आपका शौहर है, आपको मोहब्बत है और आपको अच्छी जगह खर्च करना है, तो आप मदद भी करें, है ना? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्राउड ही हो गए और इगोइस्टिक हो गए, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ़ अल्लाह की राह पकड़ ली और अपना पूरा बिज़नेस, उनके पास जितना था, सोचो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थी, वो अल्लाह की राह में दे दिया और कहा कि लोगों में लगा दो इसको। हाँ, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॉब कर सकती हैं, बिज़नेस भी कर सकती हैं और मेहर दी है। क्या मेहर में क्या दिया? इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दी है औरत के लिए, है ना? इस्लाम ने इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दी है कि नहीं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मतलब अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आप ही को मिलेगा उस चीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिक्योरिटी है इस्लाम की तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ें, आप भिड़ें, आप कहें कि ये मेरा, मैं नहीं दे सकती। आप ये भी तो देखो, हो सकता है सामने वाले को ज़रूरत हो सकता है आपके भाई को उस चीज़ की ज़रूरत हो, ज़रूरत फिर वहाँ इस्लाम ये भी तो कहता है ना कि ज़रूरतमंदों की आप मदद कीजिए और पहले अपनी फैमिली में देखिए। तो उसमें ना घमंड आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो चीज़ देता है, वो ले भी सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है? औरत विरासत में हकदार है। औरत का विरासत में भी हक है। तो ये क्या थे? उसके माली हकूक थे। यानी कि औरत को विरासत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि वो चाहे तो कमा सकती है, बिज़नेस भी कर सकती है, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करती थी, और मेहर जो है उसको मिलनी चाहिए, ये उसका हक होता है और विरासत में हकदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोशल, जो सामाजिक होते हैं, माशरे के राइट्स होते हैं। वैसे औरत के बहुत सारे जो होते हैं, क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रोल्स है ना, बहुत सारे रोल्स प्ले करती है एक औरत। बेटी होती है, बीवी होती है, फिर माँ होती है, खाला, फूफो, सब कुछ। लेकिन जो 3 फेज़ होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर रखने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना कुरान में सब सब है कि एक फूफो का क्या हक है और एक मामी का क्या हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब सब जो है कुरान ने बताया है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं, ये इंशाल्लाह, क्योंकि औरत का सफ़र शुरू होता है बेटी से बीवी बनती है और फिर माँ बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटी, बेटी के बारे में बात करते हैं कि बेटी के क्या हक हैं। तो बेटी की परवरिश, ये है अबू दाऊद की, ठीक है, हदीस नंबर 1705। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें है बेटी की परवरिश, बेटी की परवरिश, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिससे लड़की हो और वो उसे जिंदा दफन ना करें, क्योंकि पहले के जमाने में जिंदा दफन कर दिया जाता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिससे लड़की हो और वो उसे जिंदा दफन ना करे, ना उसको जलील समझे और ना लड़के को उस पर अहमियत दे, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा।
क्योंकि वहाँ क्या होता था, दफ़न कर देते थे। और क्या है, इस्लाम ने कहा जो मार देते थे ना, आजकल तो मार देते हैं, वो जेंडर चेक करके, लेकिन पहले क्या होता था, जेंडर चेकिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, तो ज़िंदा ही दफ़ना देते थे। ज़िंदा ही मतलब दफ़ना देते थे। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम ने क्या कहा कि किसी भी बच्चे को कैसे मारना, बेली में मारना या पेट में ही खत्म कर देना कैसा है, गुनाह है, और किसी लड़की को मारना संगीन गुनाह है, ये कहा गया। उस ज़माने में पैदा होने के बाद दफना देते थे। क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बच्चे से पूछेगा, तुझे किस जुर्म में कत्ल किया? और ये पता है क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बच्चे से पूछेगा कि तुझे किस जुर्म में कत्ल किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माँ-बाप से बात भी नहीं करना चाहेगा। इतना नाराज़ होता है अल्लाह। अगर आप किसी जो है उसको कत्ल करते हैं तो बच्चे से, अल्लाह सिर्फ़ उस बच्चे से राब्ता होगा। ये सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी शर्मनाक बात है कि उसके माँ-बाप से पूछेगा भी नहीं, राब्ता ही नहीं करेगा। उस बच्चे से पूछेगा कि तुझे किस जुर्म में कत्ल किया? उसके माँ-बाप से नहीं बात करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी 3 बेटियों की या 3 बहनों की या 2 बेटियों की या 2 बहनों की उनकी वफ़ात तक परवरिश की। एक रिवायत में है कि वो बड़ी हो जाएँ, और दूसरी रिवायत में है कि वो बालिग हो जाएँ तब तक, या उनकी परवरिश करते हुए उसको उसकी खुद की वफ़ात हो गई, तो वो और मैं जन्नत में उन 2 उँगलियों की तरह होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उँगली और दरमियान की उँगली के साथ के साथ इशारा फरमाया, सुभान अल्लाह। और वो जन्नती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जब वो औरतों को दफ़न किया जा रहा था, मेरा इस्लाम क्या कर रहा था, राइट्स पे राइट्स दिला रहा था कि नहीं, नमाज़ पढ़ सकती है, नहीं हर चीज़ कर सकती है। मस्जिद में जाना, नहीं मस्जिद जा सकती है। सुभान अल्लाह। और सोशल राइट्स क्या था कि नहीं, औरतों को मार दो, औरतों को ये कर दो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात ही नहीं करेगा उनके माँ-बाप से। एक आदमी आया, बैठा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कहा उसने क्या किया, अपने बेटे को गोद में बिठाया और बेटी के साथ ऐसा नहीं किया, उसको प्यार करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने क्या किया, अपने बेटे को गोद में बिठाया और बेटी के साथ नहीं किया ऐसा, और उसको प्यार किया बेटे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू ज़ालिमों में से है। तू ज़ालिमों में से है, क्योंकि तूने जैसा सलूक अपने बेटे के साथ किया, वैसा जो है कि अपनी बेटी के साथ नहीं किया। इस्लाम प्यार में भी इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात, है ना? लेकिन बहनों ये चीज़ समझिए कि हम ना सिमिलर होने की कोशिश करते हैं, हम बराबर होने की कोशिश नहीं करते हैं। सिमिलैरिटी और इक्वालिटी बहुत, क्योंकि आजकल यही चलता है। हम लोग क्या चाहते हैं, जितने भी वुमेन्स राइट्स होते हैं या फेमिनिज़्म, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, हमें सिमिलर होना है, हमें मर्दों से सिमिलर होना है। हम क्या चाहते हैं ना, हम बराबरी नहीं चाहते, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम वो उस चीज़ की माँग कर रहे हैं ना। अब बीवी के क्या हक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम से पहले औरतों को शैतान का साथी मानते थे, जन्नत से निकालने की वजह मानते थे, बुराइयों की जड़ मानते थे। जैसे आप रोम देखेंगे, इजिप्ट देखेंगे, अरब भी देखेंगे, तो अरब में ज़िंदा गाड़ देते थे लोगों को। इस्लाम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मोहसिना का नाम दिया, जो कि मैंने बताया था आपको अभी। मोहसिना का क्या मतलब हुआ कि नहीं, ये शैतान की साथी नहीं है, ये नेकी की तरफ ले जाने वाली है। क्या है, ये नेकी की तरफ ले जाने वाली है। बीवी होने के नाते आप इससे शादी करोगे तो आप गलत कामों से बचोगे, तो ये नेकी की तरफ ले जाने वाली है। मोहसिना कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा? मोहसिना। और बीवी को क्या कहा? मेहर के लिए। फिर दूसरी बात क्या है? बीवी के लिए, और लड़की की परमिशन जो है, रज़ामंदी के बिना निकाह नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों के बिना निकाह नहीं होता कहा। वली का राज़ी होना, यानी कि बाप का राज़ी होना, लड़की का लड़के को पसंद करना और लड़के का लड़की को पसंद करना, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मेहर, जो कि इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है, जो कि औरत का हक है उसकी तरफ से, और 2 गवाहों का होना। इन 4 चीज़ों के बिना जो है निकाह नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि पहली शर्त क्या है? वली का राज़ी होना, तो बाप का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है।
لیکن اس چیز کے لیے اب یہ ہے جو باپ یا جو ماں باپ اگر زیادتی کرتے ہیں تو یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث تھی، ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرے والد میری مرضی کے بنا جو ہے میرا نکاح کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری مرضی کے بنا ہوا ہے تو میں آج تیرا نکاح توڑتا ہوں. تیرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑ دیا. لڑکی کی مرضی اتنی زیادہ جو ہے معنی رکھتی ہے. ٹھیک، اتنا میٹر کرتی ہے لڑکی کی مرضی. لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ باپ کا راضی ہونا بھی، وہ پہلی شرط ہے باپ کا راضی ہونا. اگر کچھ ہے تو آپ کو پتا ہے نا یہ اسلامک حق ہے تو آپ بتائیں. آپ جانیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ لڑ بھڑ کر مر جائیں گے نا. آپ جب جانیں گے ہی نہیں کہ کیا حق ہے اور کیا چار چیزیں ہیں جس کے بنا نکاح نہیں ہوتا. لوگ کر لیتے ہیں، خود سے شادی کر لیتے ہیں کہ اسلام میں تو جائز ہے. نہیں، نکاح کی چار شرط ہیں. مہر، سب سے پہلی ولی کا راضی ہونا، باپ کا راضی ہونا، لڑکا کا لڑکی کو، لڑکی کا لڑکے کو پسند کرنا، مہر کا ہونا اور دو گواہوں کا ہونا. تبھی جا کے وہ نکاح ویلڈ ہوتا ہے الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بیوی کے حق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بیوی بنے تو کس طرح سے بنے نا. پہلے آپ شیطان نہیں ہے. پہلے اللہ نے کہا وہ محسنہ ہے، وہ نیکی کرنے والی ہے. تم لوگ شیطان مانتے ہو؟ نہیں، بیوی نیکی کی طرف لے جانے والی ہے. پھر کہا کہ اس کی مرضی سے نکاح ہوگا. پھر کہا، پھر کیا کہا؟ سورہ النساء کی یہ والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ زبردستی نہیں بن سکتے. اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہران کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. مطلب آپ مہر میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے ہو. یہ آدمیوں کے لیے کہ زبردستی نہیں کرو، زبردستی ان کے وارث نہیں بن سکتے ہو اور کچھ مہر میں سے بھی نہیں لے سکتے ہو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. کیا کہا کہ اے مسلمانوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بیویوں کے لیے آیا یہ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. الحمدللہ یہ چیز دیکھیے آج کل زیادہ تر مرد اور عورت کی اور شوہر اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے. تو مجھے اپنے شوہر کی یہ چیز نہیں پسند ہے، مجھے اپنی بیوی کی یہ چیز نہیں پسند ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں کہا ہے کہ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پہلی بات تو یہ کہا، کیا کہا؟ اچھا برتاؤ کرو اپنی بیویوں سے. اور کہا پھر اگر تمہیں پسند نہ آئے، مطلب اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی کہ آپ کو اس کی پسند نہ آ رہی ہے تو قریب یہ ہے اس کی کوئی تو اچھی چیز ہوگی، اس میں دوسری اچھائیاں بھی تو ہوں گی جو اللہ کو پسند آتی ہوں گی. تو آپ ان چیزوں پر فوکس کریں. الحمدللہ. سوچئے آپ یہ کتنی گہری چیز ہے، لیکن ہم نہ قرآن پڑھتے، ہم کچھ نہیں پڑھتے، ہم کو پتا ہی نہیں یہ آیت کے بارے میں. کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو انسان ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہیں، ہے نا. دونوں ڈفرینٹ ہیں اور دونوں کا کیا ہے کہ الگ طریقہ ہے. ایک عورت ہے ایک مرد ہے، دونوں ہی ڈفرینٹ ہے. برابر ہے وہ الگ چیز ہے لیکن ایک جیسے تو نہیں ہے نا. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں ناپسند ہو. تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اسی طریقے سے جو ہے یہ حدیث ہے کس کی؟ ترمذی شریف کی 3895. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کہتے ہیں کہ the best of you are those who are good to their wife. یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو بہتر ہے، جو اچھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی کہ یہاں پر آدمی کا کیریکٹر ویریفیکیشن از ناٹ سرٹیفکیٹ، ویریفیکیشن. اگر دنیا بول رہی ہے کہ وہ انسان اچھا ہے اور اس کے اخلاق اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو دیکھو عورت کی بات کو کتنا مانا گیا ہے، تو وہ ویلڈ نہیں ہے. آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں ہے تو نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بولی دیکھیے تو اچھے ہے ہی نہیں. مطلب یہ حق دیے گئے ہیں نا، یو کین ناٹ یوز اٹ ایز اے ویپن نا اس چیز کو. نہیں، ہاں اگر سچ ہے، سچ بھی تو بولنا آیا نا اسلام میں. اس چیز کو ہم الٹی طریقے سے نہیں یوز کرتے کیونکہ اللہ پھر عذاب دینے والا بھی ہے. الحمدللہ. اسی طرح سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہا، کیا کہا؟
यहाँ पर तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम्हारे मर्द बीवियों के लिए। मतलब जो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास है और मर्द उनकी बीवियों के लिए लिबास हैं। तो ये लिबास का वर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जो कपड़ा होता है ना, जो हम लिबास पहनते हैं, वो एक दूसरे को क्या करता है? वो ढकता है हमें। ढकता है यानी कि ऐबों को छुपाता है, तो एक दूसरे के ऐबों को कभी तीसरे इंसान के सामने नहीं लेकर आना है। और ये औरत के लिए भी कहा और ये आदमी के लिए भी कहा, दोनों के हक हैं ये बहनों। ऐसा नहीं कि औरत छुपाए और आदमी ना छुपाए, ऐसा नहीं कि आदमी ना छुपाए, औरत ना छुपाए। क्या कहा? लिबास कहा। और लिबास में कैसा होता है? इंसान अच्छा दिखता है। तो जब आप एक दूसरे के साथ हो तो आप अच्छे दिखते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ हो तो आप लिबास की तरह हैं, आप एक दूसरे को कैसे ढको, उनके ऐबों को ढको। सुभान अल्लाह, ये कहा। तो ये थे बीवी के हक। बीवी के हक क्या हो गए? कि सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहसिना का नाम दिया कि वो नेकी की तरफ ले जाने वाली है, यानी कि फिर कहा कि मेहर, और बताया कि उसकी मर्जी जरूरी है किसी की बीवी बनने के लिए। फिर कहा कि कैसा सलूक करो, कि अच्छा सलूक करो। और फिर ये कहा कि अगर उसमें कोई अच्छाई नहीं भी है तो हो सकता है कि आपको एज अ इंसान वो नहीं पसंद हो, लेकिन वो अच्छी हो अल्लाह की नजरों में। और फिर क्या बोला कि आप दोनों एक दूसरे का लिबास हो। सिर्फ ये नहीं कहा कि औरत को ही ढकना है। ये है बराबरी। इसको बोलते हैं इक्वालिटी, और इसी को बोलते हैं राइट, सही हक देना जो जिस चीज का डिजर्विंग है। तो और अब आता है माँ। और माँ के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जितना बोलूंगी उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर्जा है वो माँ का ही है, वो वालिदैन का ही है। सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 46 में बोला, हम इंसान को वसीयत और नसीहत की कि अपने अपने माँ और बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करना। और उसकी माँ ने बड़ी कठिनाइयों से, यानी कि बड़ी ही मुश्किलों में उसको संभाल के रखा, और उसे अपनी कोख में और पेट में, और उसके बाद उसको दूध पिलाया, यानी कि ये माँ का है अपने बारे में। फिर इब्ने माजा की एक रिवायत है, इसमें आता है कि जन्नत माँ के कदमों में है ना। माँ की खिदमत करोगे तो आप जन्नत पाओगे। फिर हाकिम की एक रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लानत है, अल्लाह ने नहीं कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लानत है उस इंसान पर जिसके वालिदैन उसे बुरी हालत में मिले और उनका अच्छा करके जन्नत ना कमा सके। सही बुखारी की इसी तरीके से एक रिवायत में आता है कि एक आदमी आया कि सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो उन्होंने कहा माँ। तो अच्छा, फिर किसकी करूं मैं? तो उन्होंने कहा माँ। फिर पूछा फिर किसकी करूं? फिर कहा माँ। और फिर कहा फिर किसकी करूं? तो कहा बाप। बहरहाल से कि वुमेन राइट्स, यहाँ वुमेन राइट्स की बात आ रही है। तो वुमेन राइट्स कितना हक है? तीन तीन गुना ज्यादा हक किसको है? माँ को दिया है। बहरहाल इसके अलावा भी लोग जो है गलत फहमियां पैदा करते हैं और फैलाते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे कि जो पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है, इंशाल्लाह, जो तालीम होती है ऐसे। तो एजुकेशनल राइट्स में क्या है कि सूरह अल अलग की ये आयत नंबर फर्स्ट है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर फरमाते हैं, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया। ये नहीं कहा मर्दों तुम पढ़ो, और ये नहीं कहा औरतों तुम पढ़ो। इक्वालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों का हक है पढ़ना, दोनों का हक है पढ़ना। सही अलजामी की और इब्ने माजा की, सही अलजामी की पहले सुनिए क्या है कि टू सीक नॉलेज इज ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम, यानी कि हर एक मुसलमान का फर्ज है तालीम हासिल करे। फिर इब्ने माजा में यही चीज दूसरी तरीके से बोली गई है, टू सीक नॉलेज इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम वुमेन और एवरी मुस्लिम मैन, यानी कि हर मुसलमान औरत और हर मुसलमान मर्द का क्या है? फर्ज है कि वो तालीम हासिल करे। अब कुछ लोग कहते हैं कि औरत के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ वो है इस्लामिक, वो ही है ना? लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है।
मुस्लिम साइंटिस्ट भी रहती थी पहले औरतें, सर्जरीज भी करती थी, ठीक है। इस्लामिक नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज दोनों। पहले क्या होता था ना कि पहले का जो लीडर होता था वो पॉलिटिशियंस अलग और जो रिलीजियस लीडर्स अलग अलग नहीं होते थे, दोनों एक ही होते थे, क्योंकि इस्लाम ने हर चीज को साथ में किया है। जैसे इस्लाम ने जो लीगल राइट्स हैं उनको भी अलग, मतलब कानून भी है इस्लाम में, एजुकेशन भी इस्लाम में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जो इस्लामिक चीजें हैं, तो सारी चीजें साथ में है, तो हर चीज की नॉलेज एक इंसान को होती थी अगर उसने इस्लाम की नॉलेज ले ली तो। इसलिए ये चीज बोली गई, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि आप जो है फिर आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे ना, फिर कोई चीज इजाद कैसे होगी। तो अब वो वाला जो उसमें था कि जो भी इंसान अपनी बेटियों को क्या करे, शिक्षा दे, यानी कि पढ़ाए लिखाए, है ना, और अच्छी तरबियत दे, वो क्या है, वो जन्नती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबियाँ थी और उसके बाद आपकी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतनी नॉलेज थी उनको, इतनी नॉलेज थी कि वो इस्लामिक स्कॉलर थी। स्कॉलर किसको बोलते हैं? विद्वान को, आलिमा थी वो। और उस उनके अंदर से 88 लोग, 88 लोग जो थे, 88 कौन लोग थे ये? जो सहाबियाँ थी वो तो बन के निकली ही स्कॉलर, लेकिन 88 मर्द स्कॉलर बने उनसे सीख कर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक औरत मर्द को सिखा सकती है। सोचो, वहां तो बोला जा रहा है कि आप कुरान ही नहीं पढ़ सकती हो, यानी कि आप तौरात ही नहीं पढ़ सकती हो, और यहाँ इस्लाम कह रहा है कि स्कॉलर बने, कि आलिम बने, पढ़ा सकती है, पढ़ सकती है, सुभान अल्लाह। फिर सुनने वाली, ठीक है, मर्द हो या औरत, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक उनका स्टूडेंट था आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बोला कि मैंने तफ़सीरे कुरान के अंदर, इल्मुल फ़राइज़ के अंदर ये सब सब्जेक्ट्स होते थे, है ना? हलाल और हराम, यानी कि जो प्रोहिबिटेड है ना? ये सब कुछ, और आदाब और शायरी के अंदर, यानी कि पोएट्री के अंदर, ठीक है? अंदाज़ जितना भी है, मैंने आयशा जैसा कोई आलिम नहीं देखा। अब ये एक औरत ही तो थी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत ही तो थी, तो कैसे हो गया कि इस्लाम पढ़ने नहीं देगा? और पढ़ के लोग स्कॉलर बने हैं, 88 मर्द स्कॉलर बने हैं, सुभान अल्लाह। तो क्या है कि हर मुसलमान औरत और हर मुसलमान मर्द की जो है, क्या है, फर्ज है, क्या, टू सीक नॉलेज, कि तालीम हासिल करें। मूसा जो थे, एक सहाबा थे, वो बोलते हैं कि जब हम कहीं पर अटक जाते थे और हम कुछ समझ नहीं पाते थे कि अब क्या करें, तो हम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर औरत कहीं कुछ मशवरा देने शुरू करती है तो वहाँ आपको रोक दिया जाता है। वहाँ आपको रोक दिया जाता है कि नहीं, आप नहीं बोल सकती। तो आप ये चीज़, इस चीज़ पर आप कब लड़ेंगे? इस चीज़ पर आप कब बोलेंगे? जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी ना। तो इसीलिए आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। इन औरतों को अपने हकूक पता होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब लीगल राइट्स, यानी कि कानूनी क्या है? कानूनी हक क्या है औरत के? इस्लाम में, कानून में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। और गलत काम करने पर सज़ा भी एक जैसी है। ऐसा नहीं कि अगर औरत ने सज़ा की है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, या मर्द ने सज़ा की है, दोनों बराबर हैं। अच्छे काम का अजर है अल्हम्दुलिल्लाह, और बुरे काम का अज़ाब है। सूरह बकरा की आयत नंबर 178 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर फर्ज है कि जो नाहक मारे जाएं उनके खून का बदला लो, आजाद के बदले आजाद, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। मतलब ये जो आयत है ये मारने के लिए नहीं है, ये बेसिकली उस चीज के लिए है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये उस चीज के लिए है कि ऐसा ना हो कि लोग बिल्कुल से आपको हल्के में ले लें और आपको मार के चले जाएं। इतना भी साबिर ना हो इंसान को ना, इतना भी जो है इंसान को नहीं सब्र वाला हो, क्योंकि फिर हल्के में ले लेगा कि अरे इनको तो मार दो तो कुछ नहीं होता। तो ए ईमान वालों, तुम पर फर्ज है कि जो नाहक मारे जाएं, यानी कि जिनको ऐसे ही मार दिया है, जिनका मतलब था ही नहीं मरने का, खून का बदला लो। और आजाद के बदले, अगर किसी आजाद को मारा है, मतलब कोई पहले गुलाम होते थे और आजाद होते, तो उसके बदले आप आजाद को मारो। किसी गुलाम को मारा है तो अल्लाह ने देखो ये भी नहीं कहा कि आप गुलाम के बदले किसी आजाद को मार दो। सोचिए, इतना ज्यादा अल्लाह ने इक्वालिटी दी है। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और औरत के बदले औरत, ये नहीं कहा कि औरत को माफ कर दो।
تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی ہو، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہے لیگل، مطلب قانون جو ہے ایک جیسا ہے دونوں کے لیے، نہ عورت کو تھوڑی سی وہ دی جائے گی، نہ آدمی کو تھوڑی سی سزا دی جائے گی، دونوں کو برابر دی جائے گی۔ تو برابری یہاں دیکھیں، برابری یہاں پر ہے اور حق ہے۔ پھر سورہ المائدہ، ٹھیک ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ چور مرد اور چور عورت دونوں لکھا ہوا ہے۔ اگر برابری یہاں پر نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے کہ صرف عورت کا ہی ہاتھ کاٹ دو، جس طرح سے عورتوں کو پہلے حقارت سمجھا جاتا تھا کہ ایک مرد اگر غلطی کرے تو ایک عورت کو کاٹ دو یا ذبح کرا دو۔ اللہ نے کہا اگر جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ ہاتھ کاٹنے والا ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے کوئی کھانا چرا لیا، تو دیر آر لمیٹیشنز نا کسی چیز کے لیے۔ کسی نے بہت زیادہ بڑا سنگین سنگین وہ ہوتا ہے نا، انسان کا جرم ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، تو وہ کس لیے؟ کیونکہ سزا نہیں ملتی ہے لوگوں کو، تو جرم کرنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو، اس لیے سزا رکھی گئی ہے۔ جب کبھی اور کون سا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے اسلام میں؟ داہنا ہاتھ، تاکہ پھر کبھی کرنے کی سوچے تو داہنا ہاتھ کا یاد آ جائے اس کو اور جرم سے رک جائے، اور باقی لوگ دیکھیں اور کہیں تو یہ چیز۔ اور اللہ حکمت والا ہے، اور اللہ جو ہے ہر چیز غالب حکمت والا ہے، بے شک وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر لیگل رائٹس، الحمدللہ۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو شوہر سے الگ ہونے کے رائٹس ہیں اس کو، یہ لیگل رائٹس میں آتا ہے نا۔ تو جو شادی ہے وہ سول کانٹریکٹ مانا جاتا ہے، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ کانٹریکٹ ہے۔ اگر آپ ایسا ہے کہ مرد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد دے سکتا ہے، عورت بھی الگ ہو سکتی ہے، جس کو عربی زبان میں خلا بولتے ہیں۔ تو آپ کو یہ رائٹس بھی ہے کہ آپ الگ ہو سکتے ہو۔ اور پتی کے مرنے کے بعد، یعنی کہ شوہر کے مرنے کے بعد یا شوہر کے چھوڑنے کے بعد، ٹھیک ہے، اسے پوری اجازت ہے کہ دوسری شادی کر لے، کمپلیٹ رائٹ ہے۔ یہ بھی اس ٹائم سے دیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بیوہ ہی رہے، جو کہ کچھ نان مسلم جو ہوتے ہیں معاشرے، اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں شوہر مر گیا ہے تو پوری زندگی بیوہ ہو کر گزارے گی، نہیں آپ کر سکتی ہیں شادیاں۔ تو یہ حق ہے، یہ برابری ہے جو میرا اللہ دیتا ہے۔ اور جو دنیا ہے وہ آپ کو بہکا رہی ہے کہ سملر ہونا ہے، پینٹ پہننی ہے، یہ کرنا، یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے جو اسلام کے ہیں۔ اب آپ بتا الحمدللہ۔ اب کیا ہے؟ پولیٹیکل رائٹ، سیاسی، یہ سکس ہے بہنوں، ہے نا، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ختم کریں گے۔ یہ سکس کیا ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 71 ہے، اور اس میں کیا ہے؟ آیت نمبر 71 میں، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ پولیٹیکل رائٹس کا مطلب کیا ہوا؟ بیسیکلی سیاست کی حقدار ہے یا نہیں ہے عورت، ٹھیک ہے، اس لیے یہ میں نے وہ اٹھائی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عورت مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہے، دوست ہیں، کیا ہے؟ دوست ہیں، اچھائی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے روک بھی سکتی ہے، یعنی کہ سیاست کر سکتی ہے۔ عورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، کہا اور مسلمان مرد اور عورت کیا ہے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہے، یعنی کہ اچھائی کا حکم بھی دے سکتے ہیں اور برائی سے روک بھی سکتی ہے۔ عورتیں ہیں تو اچھا سکھائیں گے اور برائی سے بھی روکیں گے۔ اس زمانے میں پولیٹیکل لیڈر اور اسلامک لیڈر ایک ہی ہوا کرتا تھا، جو کہ میں نے پہلے بتایا، اور الگ الگ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو وہ برائی سے بھی روکیں گے، یہ سب کچھ بھی روکیں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ برائی سے منع کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانے، یہ ہے جن پر ان قریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دونوں کو ایک جیسا، سبحان اللہ۔ اب جو ہے یہاں پر سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے، لیگل رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس، جی الحمدللہ۔ یہاں پر سورہ جو ہے یہ ہے ممتحنہ کی آیت ہے، کون سی آیت؟ نمبر 12۔ یہاں پر ہے، اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہو تو اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں گی۔
और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी तो उनसे बैत लो और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। बैत क्या होता है? जो बैत वर्ड होता है अरबिक में, उसका मतलब होता है वोट टू चूज़, यानी कि जो वोटिंग राइट्स है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कब दिया? देखो सूरह बकरा की आयत नंबर 12 में, कि ए नबी जब तुम्हारे हुज़ूर मुसलमान औरतें आए, जो मतलब औरतें आए और ऐसी ना हो कि मतलब जो गलत काम करें या किसी के ऊपर वो लगाए, यानी कि अगर सही बात बोल रही है ना वो, तो उनका वोट ले लो। ए नबी जब तुम्हारे पास आती हैं औरतें बैत देने के लिए तो कबूल किया करो। 1400 साल पहले वोट का अधिकार था, वोट का हक था। पसंद है ये नापसंद है, लेकिन ये है कि उसकी बात सही हो तो मानी जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार उमर इब्न खत्ताब जो थे, जो कि खलीफा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर इब्न खत्ताब का ही ज़माना आया। ए उमर लोगों ने में मह क्या हुआ था कि जब उनका ज़माना, और खलीफा क्या थे, वो 30 कंट्रीज़ के क्या थे? लीडर थे। 30 कंट्रीज़ के लीडर। सुभान अल्लाह। आज किसी मिनिस्टर को कोई बोल दे ना औरत कि आपने ये चीज़ गलत किया है, देखिए ये वाली जो मैं रखती हूँ आपके सामने, इसके आप सुनिएगा ये चीज़। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़माना था, वो एक आदमी आए उनके पास, कहा ए उमर, लोगों लोगों ने मेहर के मामले में इतनी ज़्यादा डिमांड कर दी है, क्योंकि मेहर हक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिला कर गए थे। इतनी ज़्यादा डिमांड कर रही हैं औरतें कि उनके बेटों की शादी ही नहीं हो पा रही है। जैसे कि आजकल दहेज़ है। क्या आजकल दहेज़ होता है ना, कितना ज़्यादा डिमांड करते हैं ये चीज़, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वो डिमांड कर रही हैं कि अब हमारे बेटों की शादी नहीं हो पा रही, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए और कहा कि ये तो मसला है, और बोला कि इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा हमको। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें औरतें भी आईं, यानी कि अगर मीटिंग बुलाई और उसमें औरतें आई तो इससे ये पता चलता है कि उनका हक था, और उनकी भी पोस्ट थी, यानी कि वो कमेटी की चेयर मेंबर भी थी। सुभान अल्लाह! देखिए, औरतों का मसला था तो इसलिए नहीं कि सिर्फ़ औरतों को बुलाए, तो आदमियों का मसला था ना कि हमारी शादी नहीं हो रही है, तो औरतों को बुलाया क्योंकि वो कमेटी की चेयर मेंबर थी। सुभान अल्लाह! ये देखिए, ये भी हक है। और कहा औरतों से कि मैं सोचता हूँ कि मेहर के मामले में एक रकम तय कर दूँ और रियायत कर दूँ, कि मतलब आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मेहर का मामला रख रखा है। तो एक औरत उठी और उठकर कहा कि ए उमर, जिसकी रकम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय नहीं किया कुरान के अंदर, तो आप कौन होते हैं उसकी कम या ज़्यादा करने वाले? आप कौन होते हैं उसको कम या ज़्यादा करने वाले? और फिर उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, जो कि सूरह अन-निसा की आयत नंबर 20 है, और कहा, और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बदलना चाहो, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दूसरे निकाह की शादी कर रहे हैं। एक से आपने शादी कर ली और उसको मेहर दे चुके हैं। अगर अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बदलना चाहो और उसे ढेरों माल दे चुके हो, यानी कि आप खज़ाना भी दे चुके हो उसको, तो उसमें से कुछ वापस नहीं लोगे आप। ये है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो ऐसा नहीं कि जो मेहर आपने दे दी थी, उसको ढेरों माल दे दिया था, तो उस औरत से, आप पहली बीवी से वो माल देकर आप दूसरी को दे दो। तो उसमें से कुछ वापस ना लो। क्या उसे वापस लोगे? झूठ बाँध कर और खुले गुनाह से, यानी कि तुम खुले गुनाहों में हैं, वापस मत लो। वो औरत खड़ी हुई और कहा कि ए उमर, आप कौन होते हैं? सोचो, ये औरत जो 30 कंट्री के खलीफा हैं, जो 30 कंट्रीज़ के लीडर थे, उमर बिन खत्ताब, उनके बारे में ये बोल रही है, ठीक है? तो कहा कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद रकम नहीं की, और ये हक अल्लाह ने हमें दिया है, और आप आयत देखिए कि अगर खज़ाना भी दे दो तो वापस नहीं करूँगी मैं। और नहीं करूँगी, और अल्लाह ने इसकी कोई लिमिट, तो आप कौन होते हैं लिमिट? तो उमर खत्ताब ने कहा कि ये औरत सही है और मैं गलत था। सुभान अल्लाह! यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये आयत मानकर उमर बिन खत्ताब ने कहा कि नहीं, वो औरत सही है, और कहा कि उमर, तुझसे होशियार तो ये औरतें हो गई हैं कि ये जो है कुरान की आयतें लेकर आ रही है। सुभान अल्लाह! और आजकल के मिनिस्टर को अगर कोई वही औरत बोल दे नॉर्मली, तो क्या कहेगा कि अरे तुम जाओ, या हो सकता है उस औरत का कत्ल ही हो जाए। सुभान अल्लाह! तो 30 कंट्रीज़ के जो खलीफा थे, यानी कि 30
جو دیشوں کے وہ تھے خلیفہ تھے، جو لیڈر تھے، وہ کہہ رہا ہے ایک عورت کے سامنے کیونکہ وہ صحیح تھی، تو اسی لیے اس سے پہلے والی آیت تھی کہ اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اور بیعت دیں تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، یعنی کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی بات مانی جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اس میں یہاں پر ایک لاسٹ میں ایک بات اور بتا دیتی ہوں، جس میں یہ ہے کہ آج سب کچھ عورتوں کے جو ہے حق کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی طرح سے آپ سے لیس ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھو برابری رکھی ہے، تو ہم نہیں ہوتے کہ ہم کسی کو حقارت سمجھے، کیونکہ پہلے عورتوں کو حقارت سمجھا جاتا تھا، اور اب ایسا نہ ہو کہ اپنے حق جاننے کے بعد ہم لڑیں اور بھیڑیں، ہے نا؟ ہمیں یہ نہیں کرنا اور آدمی کو بالکل سے حقارت نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ جیسے دو بچے ہیں کلاس میں، یہ میں ایک ایگزامپل لے رہی ہوں، دو بچے ہیں کلاس میں اور ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، مان لیجیے، ٹھیک؟ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو دونوں کے 90% مارکس ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، ٹھیک؟ یہ ایگزامپل ہے، دنیاوی ایک ایگزامپل، دونوں کے 90% مارکس ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہر پیپر میں ہندی میں، انگلش میں، جیوگرافی میں، سائنس میں ان کے نمبرز برابر ہوں گے؟ نہیں نا، انگلش میں ہو سکتا ہے لڑکے کے زیادہ ہوں، لڑکی کے کم ہوں، تو اسی طریقے سے کچھ حق عورتوں کو زیادہ دیے گئے اور کچھ حق آدمیوں کو زیادہ دیے گئے، کچھ چیزوں کو عورتوں کی ذمہ داری بتایا گیا اور کچھ چیزوں کو آدمیوں کی ذمہ داری بتایا گیا، لیکن ٹوٹل 90% ہے، یعنی کہ انگلش میں کسی کے زیادہ ہے تو میتھس میں کسی کے زیادہ ہے، اور میتھس میں کسی کے کم ہے تو انگلش میں کسی کے کم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابر رکھا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت تھی، تو اکوالٹی کا مطلب سملیرٹی نہیں ہوتا، پہلی بات تو ہم ان کے جیسا دکھنا، ان کے جیسا چاہنا، ان کے جیسا چلنا سملیرٹی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا ہے 90% یعنی کہ ایکول ہیں، سبحان اللہ۔ ہو سکتا الحمدللہ، میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک سب کو سمجھ آیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں کچھ بھی ایسی چیز اٹھانے کی نہ توفیق دے کہ مطلب ہم ان چیزوں کو غلط طریقے سے نہ یوز کریں، اور انشاءاللہ ہم کو اسلام کی سمجھ دے اور اسلام کا پورے طریقے سے سننے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنۃ المسیح الدجال وقنا عذاب الپرصراط۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا ربی تو غفور الرحیم ہے، تو مالک ہے، تو وہ ہے جو دنیا کو پالتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے شک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ پھر سے تیری بارگاہ میں ایک یہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا ربی کہاں جائیں گے میرے مولا کریم، کہاں جائیں گے؟ بے شک بھٹک کر تجھ تک ہی آنا ہے۔ یا اللہ یہ وہ بہنیں ہیں جن کو تو نے چنا ہے، یا ربی یہ وہ ہے جو تیری محبت میں یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں تیری محبت ہے جو انہیں یہاں کھینچ کر لائی، یا اللہ تو ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے اس دینی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ربی تو ہماری اس دینی کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کچھ بہت بہنیں بہت پریشان ہوں گی، یا اللہ بہت تنگ حال ہوں گی، یا اللہ بہت تکلیف میں ہوں گی، تو بے شک تو سب جانتا ہے، یا اللہ تو وہ ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ یا ربی تجھے پتا ہے کہ کس دل میں کتنے زخم ہے، کس دل میں کتنے ناسور ہیں، یا اللہ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے بکھرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو سکون دے، یا اللہ تو ہی راحت کا ذریعہ ہے۔
یا اللہ یہاں جتنے لوگوں کو تکلیف ہے، جو بول سکتے ہیں، جو کھل کر نہیں کہہ سکتے، جو نہیں بیان کر سکتے، تو ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ یا اللہ تو ہی سکون کا ذریعہ ہے بے شک۔ یا ارحم الراحمین، بے شک تیری راہ میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں اسی سکون کا طلبگار بنا دے یا ربی، ہمیں اسی سکون کا طلبگار بنا دے جو تیری راہ میں ملتا ہے۔ یا اللہ جو دنیا کا سکون ہے اس سے بچا لے، یہ تو دھوکا ہے۔ یا اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ بے بس ہے، یا اللہ غلطیاں کرتے ہیں، یا اللہ پھر معافی مانگ، پھر غلطیاں کرتے ہیں یا ربی، پھر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ دلوں میں خوف پیدا کر دے اپنا۔ یا اللہ ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں، یا نور تو وہ ہے جو نور ڈالتا ہے یا ربی، نور ہے یا ربی، تو ہم سب کے دلوں کو نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ دنیا میں کتنی الجھ گئے ہیں یا ربی، تیرا دھیان ہی نہیں آتا یا ربی، آخرت کا دھیان نہیں آتا یا اللہ، تیرے پاس لوٹنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی یاد میں رکھنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو کہتا ہے کہ جو تجھے یاد کرتے ہیں تو اس سے یاد کرتے، اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے یا اللہ کہ ہم تیری یاد میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ آپس میں لڑتے ہیں سر سے پاؤں تک گناہ میں، یا اللہ جھگڑتے ہیں، مسلمان کو برا بولتا ہے یا رب، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ یا اللہ تجھے پسند ہے معاف کرنا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یا ربی تو غفار ہے، تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ گناہوں کو معاف۔ یا اللہ یہ گناہ بے چین رکھتے ہیں یا ربی، یا ربی دن بھر میں جتنے گناہ کرتے ہیں تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو بولتا ہے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک کوئی انسان معافی مانگتا رہے گا یا اللہ تو عذاب نہیں دے گا۔ یا اللہ تو اپنے وعدے کا سچا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ بھٹکے ہوئے تجھ پر لوٹ آئے، یا اللہ مرتے دم تک اپنی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ یا مقلب القلوب، یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ جتنی بہنیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، یا اللہ ان سب کے لیے نیک رشتہ آئے۔ یا اللہ ایسے رشتے ہو جو تیرے دین پر شروع ہو اور تیرے دین پر ختم ہو۔ یا اللہ ہماری دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیری آج بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی دلی جائز تمناؤں کو قبول یا اللہ خود سے جوڑ لے۔ یا اللہ ہمیں دنیا سے نہ جوڑے۔ یا اللہ یہ وہ ہے جو تیری راہ میں کوشش کرتے ہیں، تو پسند کرتا ہے کوشش کرنے والوں کو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جب کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ تو شفا دے۔ یا اللہ تو ایسی شفا دے جیسے تو نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی۔ یا اللہ پریشانی سے نکال دے، حلال رزق کھانے والا بنا دے۔ یا اللہ حلال رزق کھانے والا بنا دے۔ اللہ مغفینی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ حرام سے بچا، یا اللہ حلال رزق کھانے والا بچا۔ یا اللہ کیا جواب دیں گے کیسے کمایا، یا اللہ کیا جواب دیں گے کیسے کھایا۔ یا اللہ حرام سے بچ، یا اللہ دنیا سے اٹھانا جب ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں دنیا سے تب اٹھانا جب ہم سے تو راضی ہو۔ اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ، یا اللہ ہمیں اچھا خاتمہ دینا، یا اللہ ہمیں اچھا خاتمہ دینا۔ یا اللہ ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ احساس ختم ہو گیا، یا اللہ جھوٹ ریاکاری، یا اللہ غیبت میں پڑ چکے ہیں، اللہ تو بچا لے، اللہ تو نکال لے، یا اللہ تو بچا لے۔ یا اللہ تو ٹوٹے ہیں، یا اللہ تو جوڑ دے، اللہ بکھرے ہیں تو سمیٹ، یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ تو عطا کر دے۔ یا اللہ گمراہ ہے تو صراط المستقیم پر چلا۔ یا اللہ جتنی بہنیں کوشش کرتی ہیں، یا اللہ تو نے اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ تو ایمان کی روشنی ڈال دے سب کے دل میں۔ یا اللہ تو احساسات پیدا کر، یا اللہ تو احساس پیدا کر، یا اللہ کہ تجھے سمجھ پائے، یا اللہ کہ تیری محبت
یا اللہ ہمت نہیں ہے کہ اس دنیا کو برداشت کر سکے، یا اللہ ہمت نہیں ہے کہ اس دنیا کے لوگوں کو، اس دنیا کو، اس دنیا کی سختی کو برداشت کر پائے۔ یا اللہ صبر ٹوٹ چکا ہے، یا اللہ بے شک تو سہارا ہے، یا اللہ تو بچا، یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تو اولادوں یا اللہ تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ تو رزق کی دولت عطا فرما، یا اللہ تو دین کی دولت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت سے مالا مال کر دے، صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ رشتے نبھانے والا بنا، یا اللہ دھوکہ دینے والوں میں سے بنا، یا اللہ اسلام کا بول بالا ہو، یا اللہ بچیوں کا نصیب بلند ہو، یا اللہ مریم علیہ السلام جیسا پاک بنا دے، یا اللہ لڑکیاں ہیں بھٹک جاتی ہیں، اللہ راستے سے مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی عطا فرما، اور جو بھٹکا ہے یا ربی ان کو ہدایت دے، دین اور دنیا کے ساتھ میں لے کر چلنے والا بنا دے، اے دن کو رات میں بدلنے والے، اے دن کو ہماری لاچاریوں کو ہماری قابلیت میں بدل دے، ہماری کمزوری کو ہمارے ایمان کی مضبوطی بنا دے، یا اللہ اس دروازے کو نہ کھٹکھٹائے جو ہمارا نہ ہو، یا اللہ ہماری نفسوں پر ظلم نہ کرے، یا اللہ ہر تکلیف دہ چیز سے دور رکھے، یا اللہ الحمدللہ کلاس کو تو تا قیامت تک یا اللہ دین کا دائی بنانے والا، یا اللہ دعوت دینے والی کلاس بنا دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنی جن کی دل کی دعا ہے اللہ تو سب کو قبول فرما، یا اللہ، یا اللہ اگر ہمارے گناہ جو ہے وہ آڑے آتے ہیں ہمارے گناہوں کے، اللہ تو معاف کر، یا اللہ تو عفو کریم ہے، یا ربی تو وہ ہے جو فرشتوں کی یاداشت تک سے گناہوں کو مٹا دے گا، یا اللہ تو عفو کریم ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ چاہے دینی پریشانی ہو یا اللہ، یا اسلام کے تعلق سے کوئی لڑکی پریشان ہوتے، اللہ سب کی دعائیں سننے والا ہے بے شک، یا اللہ تو اور کن کو فیکن میں بدل دے، یا اللہ جو مانگا ہے تو اسے عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا تو اس سے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ۔